Good morning, students. Students, today we are going to continue about biotic abiotic component, interaction between biotic abiotic component, and adaptation and kinds of habitat. In previous module, we have discussed about characteristic of living things, habitat, environment, and component of the environment. There are two components of environment, biotic and abiotic. Biotic में human being, plant, animals आ जाते हैं. एबायोटिक में सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. तो आज हम बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट. Biotic component of the environment can be divided into four main groups: producer, consumer, scavengers and decomposer. Biotic component environment का जो biotic component है उसको further four group में divided किया जाता है. That is a producer, consumer, scavenger and decomposer. Let's start with the producer. Producer means जो organisms अपना food अपने आप से बनाते हैं और वो दूसरे को देते हैं, produce करते हैं, like green plant. Organisms that manufacture their own food are called producer. जो organisms अपने आप से food बनाता है उसको बोला जाता है producer. For example, green plant make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Green plant with the help of carbon dioxide, water and sunlight अपना food बनाता है during the photosynthesis process. So, green plant is a producer. Next, consumers. Organisms that cannot manufacture their own food but consume directly or indirectly food prepared by green plant are called consumer. Consumer means जो organisms अपने आप से अपना food नहीं बनाते हैं but वो consume करते हैं, वो किसी के ऊपर dependent होते हैं directly या तो indirectly green plant के ऊपर dependent होते हैं for the food, जिसको बोला जाता है consumers. Animals like all animals are consumers. सारे animals किस में आएंगे? Consumers में. Consumers can be further divided into three categories. Consumer को further three category में divided किया गया है. First one primary consumer, next secondary consumer and third tertiary consumer. फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस. ये सबको आपको पता ही हर्बीवोरस मीन्स क्या है. एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रीन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो एनिमल्स सिर्फ ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करेगा उस एनिमल को क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस या तो प्राइमरी कंज्यूमर्स. Cow, horse, goat, rabbit, grasshopper are all example of herbivorous या primary consumer. तो यहाँ पे आपको primary consumer या तो herbivorous animal के 2-3 examples याद रखने हैं. Next one, secondary consumers or carnivorous. Animals that eat flesh of other animals as a food are called कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोला जाता है? जो एनिमल्स ईट करते हैं फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. फ्लैश मीन्स जो स्किन एंड बोन के बीच में कोई भी पर्सन या एनिमल का जो सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट होता है उसको फ्लैश बोला जाता है. तो उस एनिमल को बोला जाएगा कार्निवोरस या तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स. लाइक स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस. तो यहाँ पर भी आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के. Next one, tertiary consumer or top carnivorous. Large animals like lion, tiger, leopard that eat secondary consumers are called tertiary consumer or top carnivorous. They are not killed or eaten by other animals. So tertiary consumer means ऐसे जो large animals like tiger है, lion है, वो secondary consumer को kill करके eat करते हैं, उसको बोला जाएगा टर्सरी कंज्यूमर. और टॉप कार्निवोरस फिर फर्दर उसको कोई किल करके ईट नहीं करता है. ठीक है, तो ये लार्ज एनिमल टर्सरी कंज्यूमर में, जो बड़े एनिमल्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर वाले जो एनिमल्स है उसको किल करके उसको ईट करते हैं, वो आएगा टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोरस. नेक्स्ट वन, स्कैवेंजर. ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अ dead remain of animals that are killed by predator are called scavenger. स्कैवेंजर मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे जो एनिमल्स किल हो गए हैं, और किल किसने किए हैं? प्रेडेटर ने. तो उसका जो डेड पार्ट बचा है उसको उसमें उसके ऊपर वो फीड करेंगे, उस ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा स्कैवेंजर.
Kites, vulture are some example of scavenger. तो यहाँ पर भी ये 2 example आपको scavenger के याद रखने हैं. Next one, decomposers. Organisms that decompose dead bodies and etc. of plant and animal to obtain their food are called decomposers. जो organisms decomposed करेंगे, जो dead body है plants and animal की, उसका etc. है, उसको decompose करके उसमें से food obtain करेंगे, उसको बोला जाएगा decomposers. Some of decomposers का example है bacteria and fungi. ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा कि आपने क्या स्टडी किया, प्रोड्यूसर जो अपने आप से फूड बनाता है. नेक्स्ट स्टडी किया कंज्यूमर्स, इट मीन्स कि वो अपने आप से फूड नहीं बनाता है, वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. उसको फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर. प्राइमरी जो ग्रीन प्लांट ईट करता है, सेकेंडरी जो एनिमल का फ्लैश ईट करता है, एंड टर्शरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करता है. नेक्स्ट हमने देखा स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी है उसके ऊपर फीड करता है, उसमें से अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो उसको बोला जाएगा स्कैवेंजर. डिकम्पोजर्स मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडीज है प्लांट एंड एनिमल का एक्सट्रा है, उसको डिकम्पोज करके उसमें से फूड ऑब्टेन करेगा, उसको बोला जाएगा डिकम्पोजर्स. नेक्स्ट वन, to see the effect of abiotic factor like air, light, heat, water on germination of seed. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, सीड के जर्मिनेशन के लिए एबायोटिक फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट करते हैं. थिंग्स नीडेड फॉर बाउल, ग्राम सीड, ऑयल एंड रेफ्रिजरेटर. फर्स्ट, यहाँ पे डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट को प्रोवाइड करके सीड का जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है. फर्स्ट मेथड में क्या किया, पुट सम ड्राई ग्राम सीड on dry soil in a bowl 1 and place it in the sunlight or a warm place. यहाँ पे क्या किया, कुछ ग्राम सीड लिए ड्राई सॉइल में से एंड वो बाउल में डाले और फिर बाउल को लेके सनलाइट में या तो वार्म प्लेस पे रख दिया. तो यहाँ पे कौन कौन सा एबायोटिक फैक्टर हमने दिया, एयर एंड सिर्फ सनलाइट मीन्स वार्मनेस हमने एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, पर हमने क्या नहीं दिया, वाटर तो हमने नहीं दिया, तो सीड का जर्मिनेशन होगा नहीं होगा, सीड विल नॉट जर्मिनेट. सेकेंड स्टेप में क्या किया, पुट सम सॉफ्ट सीड ऑन अ मॉइस्ट सॉइल इन अ बाउल 2 एंड कीप इट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर. यहाँ पे क्या किया, कुछ जो ग्राम से मॉइस्ट सीड थे, जो सॉक किए हुए सीड थे, जो मॉइस्ट सॉइल में से निकाला है, मीन्स थोड़ा सा गीले जो सीड थे वो निकाले और बाउल 2 में डालें और फिर उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया. तो यहाँ पे हमने क्या दिया, एयर दिया एंड वाटर मीन्स मॉइस्चर दिया. ठीक है, तो हमने क्या नहीं प्रोवाइड किया, हमने उसको वार्मनेस जो हीट प्रोवाइड होनी चाहिए वो हमने नहीं किया. तो सीड जर्मिनेशन करेगा नहीं करेगा, सीड विल नॉट जर्मिनेट. नेक्स्ट क्या किया, put some soft seed in a bowl 3 and add water to it. Cover it with the layer of oil. Place it in the sunlight or at warm place. यहाँ पे क्या किया, कुछ सॉक सीड लिए और उसको बाउल 3 में डाल दिया और उसको पानी दिया, फिर उसको ऑयल के लेयर से कवर कर दिया और फिर उसको सनलाइट में रख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया, वाटर एंड सनलाइट प्रोवाइड किया, क्योंकि सॉक सीड था एंड सनलाइट भी हमने प्रोवाइड करी, वार्मनेस एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड किया. ठीक है, तो हमने क्या नहीं प्रोवाइड किया, एयर, बिकॉज हमने जो सीड लिए थे जो जिसमें हमने पानी डाला था उसके ऊपर हमने किसका लेयर कर दिया, ऑयल का लेयर कर दिया. तो अभी एयर तो अंदर बाहर नहीं जा सकती है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या नहीं प्रोवाइड किया, एयर नहीं प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा. फोर्थ स्टेप में क्या किया, put some soft seed in a moist soil in bowl 4 and keep it in the sunlight or at the warm place. यहाँ पे soft seed लिए moist जो soil में से निकाले हुए हैं उसको बाउल 4 में डाले, फिर उसको sunlight में रखा. तो यहाँ पर water भी दिया, moisture भी दिया, air भी provide की and sunlight भी दिया. ठीक है, तो यहाँ पे seed का germination होगा, because seed germination के लिए प्लांट सीड को एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मनेस चाहिए मीन्स सनलाइट चाहिए, तो ही उसका जर्मिनेशन होगा. कंक्लूजन, एयर, सनलाइट एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड के जर्मिनेशन के लिए ये 3 एबायोटिक फैक्टर चाहिए तो ही सीड का जर्मिनेशन होगा.
नेक्स्ट वन, इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन कैसे होता है वो आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो इंडिपेंडेंटली लाइव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एनिमल एंड प्लांट का ले लो, ठीक है। अगर प्लांट ग्रो ही नहीं होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल की सोइल ही नहीं है तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, सीक्वेंशियल जर्मिनेशन नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे, कोई भी पर्टिकुलर हैबिटेट में प्लांट एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लस वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, लाइक एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर, जिसको इंटरडिपेंडेंस कंसेप्ट बोला जाता है। No organisms can live independently. In any habitat, plant and animals, biotic component depend on each other and on non-living component, abiotic component of the environment. This is known as the interdependence. Because of this interdependence, plants and animals help maintain the balance in the nature. ये interdependence की वजह से ही nature में plant and animals है उसका balance होता है, वो maintain रहता है। इसीलिए कभी आपने सुना है कि ऑक्सीजन का प्रपोर्शन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया, होगा तो थोड़े से लेवल में होगा, इतना नहीं है। हम कैसे बोलते हैं, हमने जो कंपोजिशन देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.03% होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, तो वेरिएशन होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, इतना ज़्यादा परसेंटेज चेंज नहीं हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट, ये इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही नेचर में बैलेंस रहता है। मीन्स ये जो प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं वो बैलेंस रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया है इंटरडिपेंडेंस, दिखाया है इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, राइट। यहाँ पे वाटर है जो प्लांट को मिलेगा, फिर प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ऑमनीवोरस, एंड इन सबको क्या करेगा, डिकम्पोजर, फिर उसको डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो ये आपको इंटरडिपेंडेंस चार्ट दिखाया है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का। नेक्स्ट वन, एडेप्टेशन। Favorable features present in plant and animals that help them survive in particular type of habitat are known as adaptation. पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स में डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर हैबिटेट में ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैमल डेजर्ट में ही रह सकता है, फिश वाटर में ही रह सकता है, बिकॉज उसका फीचर्स ही ऐसे होते हैं उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स एडेप्ट इन पर्टिकुलर हैबिटेट बाय चेंज इन अ बॉडी शेप, ऑर्गन, कलर, साइज, बिहेवियर एंड लोकेशन। ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर हैबिटेट को अडेप्ट करता है, वो अपने बॉडी के शेप को चेंज करके, या तो ऑर्गन को, या तो कलर को, या तो साइज को, या तो बिहेवियर, या तो लोकेशन को, तो ही वो पर्टिकुलर हैबिटेट पे अडेप्ट हो सकता है। For example, lotus plant is well suited to live in an aquatic habitat and camel well suited to live in a desert. जो lotus plant है वो aquatic habitat में रह सकता है and camel है वो desert area में रह सकता है। We say that lotus plant है वो adaptation. हम ऐसा भी बोल सकते हैं लोटस प्लांट में एडेप्टेशन हुआ, फेवरेबल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे वाटर यानी कि पॉन्ड में रह सकते हैं। एंड कैमल में भी एडेप्टेशन हुआ बिकॉज वो डेजर्ट में ही रह सकते हैं, उसका बॉडी के ऐसे ही एडेप्टेशन होता है, ऐसे ही वो अडेप्ट करता है पर्टिकुलर हैबिटेट को, इसलिए वो वहाँ पर ही रह सकते हैं। The lotus plant can live in a lotus plant cannot live in a desert because it does not have a features to live well in a desert. लोटस प्लांट डेजर्ट एरिया में नहीं रह सकता है बिकॉज उसके फीचर्स ही ऐसे नहीं है कि वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सके। सिमिलरली कैमल कैन नॉट लाइव इन वाटर, सेम वे से कैमल पानी में नहीं रह सकता है बिकॉज उसके फीचर्स ही उसकी बॉडी में ऐसा है कि वो डेजर्ट एरिया में ही रह सकते हैं। Organisms develop favorable features over a period of time, और organisms favorable features develop करेगा particular time में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हम वहाँ के जो पर्टिकुलर हैबिटेट है उसको अडेप्ट कर लेंगे, उसको अडेप्ट करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड होता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ की पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी को अडेप्ट करने में। इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है आपको पर्टिकुलर हैबिटेट को अडेप्ट करने के लिए। अगर मुझे यहाँ से अफ्रीका भेज दे तो मैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाऊँगी 2-3 दिन में,
नहीं होगी, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है. Those plant and animals that are not able to adapt with ever-changing environment can not survive and therefore die. जो प्लांट एंड एनिमल्स पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो पर्टिकुलर सीजन, वहाँ का वेदर, ये सब कुछ चेंज होता है, तो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड वो डाई हो जाएंगे. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू चेंज इन अ डिफरेंट वेज. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वेज से अडेप्टेशन होता है. पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में टाइम लगता है डिफरेंट वेज से. दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट. ठीक है, तो हमने यहाँ तक एडेप्टेशन, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ हैबिटेट. यहाँ पे आपको 2 मेजर काइंड्स ऑफ हैबिटेट के बारे में स्टडी करना है, दैट इज अ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट. वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे.